let us approach this very concept, idea called as critical thinking. Let us use the word critical thinking. Okay, and all of us have the capacity to think critically. We have been doing that. अगर वो करते नहीं तो यहां तक नहीं आते हैं, है ना. हर कोई कर रहा है, अलग अलग तरीके से वो कर रहा है. पहला, व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग. बहुत सिंपल सी भाषा में, व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग. Critical thinking, simply speaking, is the habit of asking questions. Can we say that? Yes, we can. At a very primary level, we can say that. Okay. पहला. दूसरा, is critical thinking essentially about finding faults? Is it essentially about that? No, it is not about that. है ना? But it is certainly about asking questions. So we raised the question, what is critical thinking? And we answered immediately, just in a very crude way, asking questions. Fine, that is more than sufficient, number one. Number two, why do we need to ask questions? Why do we require critical minds? Why do we require critical thinking? Dusra sawal. What do you think about that? Why do we need to ask questions? Why do we need critical minds? Why do we need critical thinking? Do we really need that? Why do we need that? हाँ, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना पिछले 1 घंटे से, तो उसके रिलेशन में थोड़ा उसको कनेक्ट करते हैं. We began our discussion by very briefly referring to Indian democracy या Indian democratic government. और हमने बोला कि human societies over the periods have evolved a mechanism called as government, a body called as government, to organize our collective affairs. है ना? Now, if we are talking about organizing collective affairs, and I'm sure you want to be part and parcel of what? The process of organizing collective affairs in capacity of the civil services. So we have the mechanism government, 3 branches, executive, 2 parts of executive, administration, bureaucracy, non-political, 4 elements of administration bureaucracy, and 1 integral element of that is civil services. So you want to be active part of the collective decision making process. Therefore you want to join the civil services. Okay. Now whenever we think about organizing our collective life, yani ki we are not thinking about organizing my personal life, या somebody's personal life, या life of a family, या a particular caste, या particular group. Rather, we are thinking about society, that is the Indian society in its entirety. We are thinking about Indian nation, जो भी हमें इस्तेमाल करना है word, या the entire population, Indian population. So Indian society बोलिए, Indian nation बोलिए, Indian people बोलिए, Indian citizenry बोलिए. So we are thinking about the collective life. Now try to relate. Do we need critical thinking, the habit of asking questions, in order to organize our collective life? बिल्कुल है. क्यों और कैसे? Why do we need to ask questions when it comes to organizing collective life? Why do we need to do that? सिंपल सा एक आंसर हो सकता है, because we want to organize our collective life. What? कैसे भी चलेगा, चलो जैसा होता है वैसे करेंगे. मराठी मध्ये जमेल तसं करूया तसं म्हणतो आपण. So what should be our goal? To the best of our ability. We will always aim at organizing our collective life, our social life, our public life, our national life. Again, I'll get back to the word collective life, to the best of our ability. And in order to what? Discover, invent the best way of organizing our collective life, we have to keep asking questions. We have to keep asking questions. और 2 चीजों पे ध्यान देते हैं. पहला, is Indian society known for consensus या agreement? या Indian society is rather known for disagreements about issues, about matters, about how our life should be organized, channels, so on and so forth. Do we have agreement? Yeah, we have disagreement. So there is no doubt that we have disagreement. Point number 1. Point number 2.
Why do we have disagreement? Two quick answers. So one is because we tend to think about us, about our collective life, not in a similar manner, but in a very different manner. और how different? At times हमारी सोच exactly opposite of each other हो सकती है. So we tend to think in a very contradictory, antithetical manner, conflictual manner. ऐसा भी हो सकता है. So we have got differences of opinion. Therefore we have disagreement. We tend to look at and understand reality in a very different manner. Therefore we have disagreements. Okay, we have disagreements, we have controversies, we have conflicts, so on and so forth. Number one. And the second reason for which we have absence of agreement, yeah, we have disagreement, we have conflict, we have controversy, because we as sections of Indian society, yeah, we as member of Indian society are not at par in the sense of our development. Rather, members, the sections of Indian society, all members and sections of Indian society are at differing levels of the development. Be it social, be it political, and be it economical, सब कुछ डालिए उसमें. So we are not at par in the sense of development, but we are at a very differing level. Now, if we want to understand that from the typical language of economics, then there is a line which is known as below poverty line. Below poverty. Then थोड़ा नजदीक है उसके poverty line के. Then there are sections which are slightly above poverty line. Then there is lower middle class, upper middle class, the super rich, the billionaires, so on and so forth. So look at the economic stratification that we have in our society. Okay, so economic है यानी कि जिसको हम class बोल सकते हैं. We have stratification in our society because of the caste system. We have stratification in our society because of patriarchy, है ना, gender discrimination, वो भी stratification है. And there are so many other, but the gender patriarchy, the caste system and the class system, अभी फिलहाल तो इतना काफी है. So we tend to think differently, and दूसरा, we are at differing level, very divergent level of development. उसका दोनों का नतीजा ये होता है, our interests and therefore our demands are not one and the same, but our interests and demands are very different from the others. And here lies the reason due to which we have controversy, we have disagreement, we have serious conflicts within our society. Okay, so this is one thing. आप उसका ये भी आंसर हो सकता है, और उसके दो एस्पेक्ट ध्यान में रखिए, and therefore we are going to need something called as the critical thinking. We have interests, we just stated that, and we have different demands. What do we require to fulfill our demands? We know the answer. We require what? Resources to fulfill our demands. Resources, concrete resources. बोलने से काम चलने वाला है क्या? कितनी देर तक बोल सकते हैं हम? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, उसके बाद करेंगे क्या हम? We are going to require concrete, substantial material resources. Okay, but the problem with resources is twofold. वो दोनों भी आपको पता है. पहला क्या है? We have, yes, the resources are limited, और वो और भी कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है. The resources are over the years, day by day, let us say, are depleting. We have limited resources with the problem of increasing scarcity because of the depletion of resources, और बहुत ही valuable resources deplete हो रहे हैं. Point number 1, यानी कि पहला aspect है, और दूसरा क्या है आप सबको पता है. Whatever available resources we have in our society, those resources are unevenly, very discriminately what? Distributed. ये सभी problem की जड़ है. Okay, so why do we have controversies and conflicts? A, because we got limited resources and we have uneven kind of resource distribution. Okay, so by keeping in mind this fundamental issue with resources, availability of resources and the manner in which resources have been distributed, we have to take note of something called as the critical thinking mind, a critical thinking ability. आप उसको थोड़ा और simplify करते with this background in mind. Critical thinking is that kind of way of thinking in which you you what? पहला,
वो तो बहुत एक्सप्लिसिट है. यू क्वेश्चन. ओके. नंबर 2, you analyze. Number 3, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा. विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड वेरी विजिबल. सिंपल जितना रख सकते हैं उतना रखेंगे, लेकिन ये टर्म्स ऐसे मैं इस्तेमाल करने वाला हूं. इंटरप्रेट. देन द फोर्थ, इवैल्युएट. एंड फाइनली टेक या फ्रेम या फॉर्म, जो भी कहना है आपको. सॉरी, नॉट टेक, मेक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. हाँ, उसको सिंपल सी भाषा में भी हम लिख सकते हैं ना. मेकिंग जजमेंट का मतलब क्या होता है एट ए वेरी बेसिक लेवल? टेकिंग डिसीजन, यानी कि यू डिसाइड समथिंग. ओके. सो critical thinking ability. So what are we going to do as part of developing critical mind? So we are going to become deeply habitual of critical thinking. But what does critical thinking as a process, as a exercise going to consist of? Simple. पहला है, we are going to raise questions. यानी कि we are going to ask questions. जैसे मैंने शुरू में कहा, let us not take anything for granted. आप क्वेश्चन पूछने की आदत हमें शुरू से है, तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द रिसेंट स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन दिल्ली एंड सो मेनी अदर सिटीज ऑफ इंडिया. ओके. क्या क्वेश्चन पूछेंगे? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्या पूछेंगे आप उसके बारे में? पहला सवाल क्या होगा आपका? कुछ भी हो सकता है, बोलिए आप. क्या सवाल? हाँ, सॉरी. अच्छा, रीजन क्या है उसका? ओके. सो व्हाई डिड वी हैव स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑन सच अ लार्ज स्केल? व्हाई? सिंपल सी भाषा में, व्हाई डू वी हैव? पहला सवाल. ओके. और क्या हो सकता है? वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. क्यों ऐसा हुआ है? आप अलग अलग एग्जांपल्स लीजिए. व्हाई डिड 1857 रिवोल्ट टेक प्लेस? दूसरा, why did India decide to go for democratic form of government? Why did India adopt federalism, यानी कि 2 levels, and while adopting federalism, why did it choose to go for a dominant center? Again, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हैं हम. Why did Constitution of India and the makers of Constitution of India adopted right from day one something called, as all of us know, universal adult franchise without any discrimination? And no other country, neither a country from Europe nor America, तो एक ही country था वो. Okay. None of them which are classically known for democracies in the modern period as the birthplaces of democracy, at least in modern sense. Okay. None of those countries, okay, had introduced universal adult franchise right from day one. It was done by Indian Constitution, and that is not a small achievement on our part. बहुत ही big achievement है. तो उसको भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. What made them to think so and go for universal adult franchise? So yes, why? दूसरा क्या सवाल पूछोगे? Let us get back to the protest. क्या सवाल पूछेगे आप? Now, simple, who were the participants in the protest? है ना. लेकिन खाली स्टूडेंट्स नहीं थे उसमें. जो स्टूडेंट्स नहीं थे वैसे भी बच्चे थे, है ना, टेक्निकली स्पीकिंग. देन देयर वेर दो स्टूडेंट्स हु वर ऑलरेडी ग्रेजुएटेड. कोई फॉर्मल उनका चल नहीं रहा था, वो ऐसे बेकार है, वो अनएम्प्लॉयड है, वो भी थे. देयर वेर पेरेंट्स एज वेल, देयर वेर वर्कर्स, एंड देयर वेर सो मेनी अदर पीपल हु डिड पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट. यानी कि किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? पॉइंट नंबर 2. दूसरा क्वेश्चन है. ओके, हु पार्टिसिपेटेड. तीसरा क्या हो सकता है? हाँ, यस. all the leaders of the protest, was they were fighting for the genuine reason of the paper leak, or they were having their own
ओके फाइन, हाँ. सो व्हाट वेर द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, डिमांड्स बोलेंगे उसको. ओके, अब उन्होंने एक सवाल ऐसा खड़ा किया है, तो हमें देखना पड़ेगा वो यहां लेके जा रहा है हमें. ओके, वी हैव टू एनालाइज. ओके, जब हम रीजन में जाते हैं, ओके, एनालिसिस का सिंपल मतलब है, क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, एनालिसिस इज नथिंग बट टू ब्रेक डाउन समथिंग, टू डाइसेक्ट समथिंग. तो एनालाइजिंग प्रोटेस्ट, द रिसेंट प्रोटेस्ट, ओके, मींस ब्रेकिंग इट डाउन. अब जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो दो चीजें मिलते हैं, तो एक है कॉज या कॉजेस और दूसरा है उसके इफेक्ट्स मिलते हैं. ओके, लेकिन उन्होंने एक आंसर देते वक्त ये कहा कि वी हैव टू आल्सो रेज क्वेश्चन अबाउट द डिमांड्स, वेयर द डिमांड्स मेड बाय द स्टूडेंट्स वेर जेन्युइन डिमांड्स. ओके, या देयर वेर सर्टेन पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोटेस्ट हु हैड टू सेटल देयर ओन सॉर्ट ऑफ, लेट अस से, स्कोर. कुछ ऐसा दूसरा डिमांड लेके वो आ रहे थे क्या. सो दिस टेक्स अस टू समथिंग कॉल्ड एज द इवैल्यूएशन. ओके, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोटेस्ट. बाय द वे, आई विल ब्रिंग इट वन मोर थिंग हियर. उन्होंने डिमांड क्या रखी थी, पहली डिमांड क्या थी, सबसे बड़ी डिमांड क्या थी उनकी, रेजिग्नेशन ऑफ द. ओके, अब हाउ कुड वी इंटरप्रेट द रेजिग्नेशन, यहां लेके जाएगा. एंड वी नो द आंसर, because their demand was that the union education minister must resign for the simple reason that this is our government, we have elected them and they are bound by the democratic contract to answer us and we have to fix the accountability. उसकी बात हो रही थी वो. So interpretation का मतलब है we are demanding the issue, we are interpreting the issue, the demand, and trying to understand as to why the students were demanding resignation of the union education minister. अब interpretation का मतलब क्या होता है, what is mean by interpretation? Interpretation का meaning क्या होता है, what do we do while interpreting anything? What do we do? अब देखिए एक एग्जाम्पल, नहीं आपको आंसर पता है, सबको आंसर पता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. Who has the authority to interpret constitution? आप बोलेंगे सर मुझे भी है, सबको है हमें, बट फॉर्मली स्पीकिंग, एज फार एज द सेपरेशन ऑफ पावर, यस यू आर राइट, द जुडिशरी हैज द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हेन वी से जुडिशरी इंटरप्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज जुडिशरी एक्चुअली डू? वो रिराइट करता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ हटाता है उसमें से, क्या करता है फिर? नो नो, व्हाट? No addition, no deletion. We are talking about interpreting. We are not talking about amendment. Amending का मतलब है कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ रिपील कर सकते हैं. We are talking about interpreting. हम यूजुअल कॉन्वर्सेशन में भी बोलते हैं ऐसा मत इंटरप्रेट कर बाबा, मतलब क्या है? नो, हाँ, नो इंटरप्रिटेशन, interpret, to interpret something. हाँ, yes. हाँ, मतलब क्या करते हैं हम? Yes, you are right. अच्छा, एक्सप्लेन करते हैं, और थोड़ा नजदीक है आप. Yes, वो भी चलेगा. Yes. अंडरस्टैंड, वो भी चलेगा, क्योंकि एक्सप्लेन करते, अंडरस्टैंड करते. नहीं, इतनी सिंपल सी बात है. We try to understand. What should I say? मैं लिख ही लेता हूं यहां पे, आप हंसोगे आप. इंटरप्रिटेशन इज गेटिंग टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग. क्यों एक्सप्लेन करना पड़ता है हमें? वी एक्सप्लेन बिकॉज, जैसे आपने बोला राइटली कि एक्सप्लेन सिंपली सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट. सो उसको इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब हम उसका मीनिंग लगाते हैं. What does it mean? So interpretation में जैसे हमने कहा कि they were demanding resignation. How are we supposed to interpret the demand of resignation of the union education minister? उसका अर्थ कैसे लगाए, यानी कि मीनिंग लगाते हो. So court also while interpreting constitution, तो constitution का अर्थ लगाता है, वो उसका मीनिंग लगाता है. अब एक सादा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, and that is going to be very interesting later on. शायद आपने पढ़ा भी होगा. We have an article in Constitution of India
21, which is about right to life and liberty. Okay, अब मैं बाकी डिटेल्स नहीं बताता हूं आपको. In 1950, in the very first year of the implementation of Constitution of India, the right to life and liberty was brought before the Supreme Court of India. कि आप बताइए उसका मतलब क्या है. बाकी मैं चीजें नहीं बताऊंगा आपको. We'll discuss that later on. तो कोर्ट ने बताया right to life का मतलब to survive physically. What is mean by that? Right to life as guaranteed under Article 21 is about what? Physical survival. यानी कि to survive one's own life. ऐसा अर्थ लगाया. But then the Supreme Court of India in another case in 1978, खाली वो ईयर ध्यान में रखिए, बाद में डिस्कस करेंगे, which is known as the मनेका गांधी केस, फेमस मनेका गांधी केस. तो उसमें कोर्ट ने कहा कि right to life means right to live a dignified life. अब दोनों का मतलब अलग है. So if you define life just to survive physically, then we are talking about, ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि एनिमल्स के भी राइट्स है. यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि एनिमल के लेवल पे आपने मुझे ला के छोड़ा है, आई एम अ ह्यूमन एनिमल, अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, ऐसे मानते हैं ना हम. तो अगर आपका एग्जिस्टेंस उस लेवल पे ला के छोड़ा गया है तो लाईफ का मतलब आपने खाली फिजिकल सर्वायवल, म्हणजे मराठीमध्ये सांगायचं जिवंत आहेस ना बस, बाकी कशाला विचारतोयस तू, म्हणजे सर्वायवल, टू सर्वाइव. But later Supreme Court of India interpreted right to life in a very liberal way, in a very broader way, to mean it, to define it as right to live dignified life. और शायद आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में, in the context of COVID-19 pandemic and millions of deaths in India, and in case of one of the recent cases from Haryana, Harish Rana case, okay, wherein यूथनेसिया, शायद आपने पढ़ा होगा, क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नाउ व्हाट वेरी क्लियरली recognized right to die with dignity, right to die with dignity as part and parcel of right to life. I hope you got it. What are we doing here? Not we, but the court is doing here, was doing here, interpreting, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजन जो है, आर्टिकल्स हो सकता है, कोई प्रोविजन हो सकता है, उसका वो अर्थ लगाता है. सो दैट इज हाउ. यस, फाइन. एनीथिंग एल्स? व्हाट अदर क्वेश्चन शुड वी आस्क अबाउट द प्रोटेस्ट या टू द प्रोटेस्टर्स? क्या है उसमें? आपको समझ में आया ना? ये मीनिंग की बात कर रहे हैं हम. एनालिसिस में हम ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसे ही लेके जाएंगे हम आगे आगे. ओके, और एक इवैल्यूएशन है. अब देखिए, अगेन लेट अस फोकस ऑन द डिमांड, द की डिमांड ऑफ द प्रोटेस्टर्स. क्या डिमांड थी? डिमांड थी रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर. अब अगर मैंने उसको इवैल्यूएट करने का ऐसे सोचा, इफ आई ट्राई टू इवैल्यूएट, उनका एक इवैल्यूएशन था कि नहीं, हमें सब पहले देखना चाहिए कि सच में वही लोग थे या दूसरे भी लोग आए थे. दिस इज वन वे ऑफ इवैल्यूएटिंग द प्रोटेस्ट. बट नाउ लेट अस अज्यूम दैट ऑल पार्टिसिपेंट्स वेर जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स, दे डिमांडेड रेजिग्नेशन, नो डाउट अबाउट दैट. आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो मैं कहूंगा the issue was the issue of accountability, fixing the accountability of the government, of the concerned minister, education minister. Fine, there is no doubt in that, nothing bad, problematic in the demand. But if I say that क्या होगा minister resign करके, I hope you got it. Okay, is it going to be sufficient? Is it going to be adequate to fix the responsibility and accountability of the government? वो तो symbolic gesture होगा. Now this is also another way of evaluating the protest. आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. आप बोलेंगे कि सर ये कैसे कर रहे हैं आप? अभी अभी हमने कहा, and we sort of appreciated that fact about Constitution of India. Constitution of India adopting universal adult franchise right from day one, unlike any other modern democratic states. First experiment था हमारा वो, और हमने किया है वो. So we must appreciate that feature of Constitution of India. But how far the universal adult franchise helped us, and especially the needy, vulnerable sections of our society, the neglected sections of our society.
has universal adult franchise empowered them to really elect their governor, elect their government, elect their rulers, and facilitated an accountable and responsible government? तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, उन्होंने यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अनडाउटेडली has empowered them so that they can participate in election process, they can decide the fate of the government to some extent. But then beyond a limit, the device of universal adult franchise is not helping them out because there are limitations. Because there are serious limitations. There are, कोई तो ये कहेगा, ऐसा पब्लिकली कोई नहीं कहेगा, लेकिन आप प्राइवेट में बात करोगे ना तो वो बोलेगा सर क्या होता है इलेक्शन से, हर 5 साल आता है तो हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है. हाँ, अब ये भी आप सुनोगे कभी कभी, अगर जाओगे ग्राउंड पे तो ये भी आप हमें सुनने को मिलेगा. उसका मतलब यह है कि उससे बेहतर सर हमें रोटी दीजिए, इससे बेहतर है हमें रिसोर्सेज दीजिए, इससे बेहतर है जॉब दे. ऐसा अगर किसी ने कहा तो इट वुड बी अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन फॉर अस. हम पढ़े लिखे, हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड पार्टिसिपेट इन दैट. वो बोलेगा हो क्या रहा है उससे. दिस इज अ वेरी क्रिटिकल काइंड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. सो वी शुड एप्रिशिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट देन देयर इज अनदर साइड, वी कैन assess that critically and we should definitely assess that. दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं जिसका मैंने जिक्र किया, 73rd 74th amendments 1992. They introduced third layer which is known as local self government. Rural is known as panchayati raj and the urban is known as urban local bodies. Okay, should we appreciate the development? Absolutely yes, because these amendments, 73rd 74th amendments, accorded constitutional status to the local self government. Constitutional basis उसको दिया, number 1. Number 2, it also provided for reservation to scheduled caste and scheduled tribe, but importantly even reservation for women. 1/3 reservation women को रखा गया. And now some states have increased the reservation for women from 1/3 to यानी कि 33% to 50%. Okay, so that was not a small achievement. It was a very important landmark rather development in course of, in the sense of taking power to the grassroots. ये definitely हुआ है. But on the other hand, if you look at the flip side of reservation to the women at the local body, in the local body, तो आपने शायद ये सुना होगा, there is a term called as सरपंचपति. क्या है वो term? सरपंचपति. सुना है ना आपने, पढ़ा है. What is mean by that? यानी कि सरपंच तो विमेन है फॉर्मली स्पीकिंग, बट उसका पति सब कुछ कर रहा है. वो पति हो सकता है, पिता हो सकते हैं, बच्चा क्या बोलेंगे उसको, सन हो सकता है ना. क्योंकि मेन इन डिफरेंट कैपेसिटीज, दे आर द डिसीजन मेकर्स बिकॉज वी आर डीपली स्टिल कंटिन्यू टू बी अ डीपली पेट्रियार्कल सोसाइटी. तो विमेन हैव एंटर्ड लोकल बॉडीज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट. But because of patriarchy and so many other factors, their presence in local body has not been effective. Okay, they are present, they have entered, and that's not a small achievement. क्योंकि जैसा मराठी मध्ये चूल आणि मूल, so they were constrained to the family, the sphere called as family. They were not allowed to come out of the family sphere, the private sphere. They could come out, they could contest election, and they subsequently entered the local cell bodies, and those are the public decision making bodies. How could we forget? Whether it is Gram Panchayat, या Panchayat Samiti, block level, or the ZP, या municipal council, या municipal corporation from the urban habitat, जो भी है वो. So they have entered, but somehow because of so many reasons, their presence has not been effective. So this is how we are going to look at the issue, look at the matter. So get back to the point and plain and simple तरीके से हर एक इसका पहलू एक्सप्लेन करते हैं. आप उसका लंबा लिस्ट होने चाहिए, यानी कि why did that happen, how did that happen, what is the impact of that, okay, what did government do in order to overcome the problem if it is a problem, okay, how far whatever is done by the government
adequate enough to deal with the problem and what next needs to be done. एक लंबा लिस्ट उस क्वेश्चन का डेफिनेटली हो सकता है. सो इन ऑर्डर टू डेवलप अ क्रिटिकल माइंड, और ये सब आपको पता है, आप जैसे आपने स्कूल में जाना शुरू किया होगा, हर टीचर आपको ये बताता है डेफिनेटली, बट आपको असल में ये करना है, अभी करते आ रहे हैं आप, लेकिन वी हैव टू डू अबाउट दैट. सो asking questions, various kinds of, as many questions as possible, because simply speaking we are not going to take anything for granted. Not taking anything for granted. मुझे मराठीत गृहीत काही धरायचं नाही, म्हणजे मैं अजून कुछ करने वाला नहीं हूं. I am going to ask and raise questions, obviously pertinent questions. Okay, analyze. Okay, the moment we start asking questions, obviously we are going to find out sources for the information, sources for the facts, sources for explanation, data जो भी है वो, तो we will find out sources and we will try to collect the answers from those sources. जब वो आएगा हमारे पास तो उसका क्या करना पड़ेगा हमें, because we will have, or we are likely to have a lot of information, a lot of stuff with us. We will have to break it down systematically. Okay, we have to analyze. So analysis या dissection भी हम उसको बोल सकते हैं, dissection जैसे बोलते हैं हम. It is nothing but the process of breaking it down systematically. और करना क्या है हमें असल में, when we analyze something, आप देखिए, analyze 1857 revolt, analyze the recent student protest in Delhi. तो करना क्या है, दो चीजों पे हमें ध्यान देना है. पहला है what are the causes या what were the causes, और दूसरा है उसका नतीजा क्या निकला, उसका इफेक्ट क्या हुआ है, उसका आउटकम क्या है. दो चीजों पे हमें, और उसमें कॉजेस 1 2 3 4 5 एंड द इफेक्ट्स 1 2 3 4 5 जो भी है वो. सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू एज पार्ट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस या एबिलिटी. दूसरा. तीसरा, इंटरप्रेट. अब देखिए, हमने क्वेश्चन पूछे हैं, वी गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स जो भी है, वी एनालाइज्ड इट and we arranged it systematically in the form of what are the causes and what are the effects of that. अब वो पता चलने के बाद ये हमें करना चाहिए, यानी कि what is the meaning of that. Okay, जब वो कह रहे हैं कि we need to fix the accountability, we have to raise the question, what is mean by that? What is accountability? Accountability is answerability. Why are they demanding accountability from a minister, from the government? तो आप बोलेंगे क्या कह रहे हैं, क्या बेहुदा सवाल है, या फिर ट्रम्प से मांगेंगे क्या हम? तो हमें हमारे गवर्नमेंट से ही सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव इलेक्टेड आवर गवर्नमेंट. विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ, मेकिंग सेंस ये भी उसका अर्थ हो सकता है. सो व्हेन वी इंटरप्रेट समथिंग, वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दैट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेम थिंग. ओके, ऐसे अलग अलग उसमें एस्पेक्ट्स आते हैं. आप, क्योंकि एग्जाम्पल पे वो डिपेंड करेगा, आपको ये बोला गया है हाउ डू यू इंटरप्रीट, हाउ डू यू इंटरप्रीट. अब वही जो थोड़ी देर पहले मैंने उसका रेफरेंस लिया था, राइट टू डाई विद डिग्निटी, इंटरप्रेट राइट टू डाई विद डिग्निटी. ऐसा ही सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है. तो पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया through a separate chapter has provided for an elaborate list of fundamental rights, and one fundamental right happened to be the right to freedom, and of that we have right to life and liberty under article 21. plain and simple, पहला. दूसरा, आप बोलेंगे कि article 21 provides for right to life and liberty. Okay, आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या, right to life does contain right to die with dignity? No. This has been the outcome of the judicial pronouncements, the judicial interpretation. So judiciary करते करते करते, और आपने दूसरा थोड़ा prominent example लेते हैं, right to privacy. Do we have right to privacy? Absolutely we do have right to privacy. But सालों लगे हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए, सालों. So many matters were taken to the Supreme Court of India, and finally the case is known as Puttu Swamy case, कि जिसमें finally court established very categorically, explicitly, that there is right to privacy. And right to privacy किस right का हिस्सा है? Again, right to life.
अब हाल ही में और एक राइट जिसकी चर्चा है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, राइट टू बी फॉरगॉटन। हाँ, ये राइट है, राइट टू बी फॉरगॉटन। आपको सरप्राइज लगा, राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब क्या है? यू ट्राई टू फाइंड इट आउट, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग राइट, रिसेंटली वाज इन न्यूज, राइट टू बी फॉरगॉटन। आप बोलेंगे अच्छा मेरा पूरा प्रोफाइल गायब करना है क्या सोशल मीडिया से? अब वो यू ट्राई टू फाइंड इट आउट, बट दैट इज अगेन, सो आपको सरप्राइजिंग लगेगा। मैंने एक केस का जिक्र किया, 1978 मनेका गांधी केस, wherein the Supreme Court of India interpreted right to life as right to live a dignified life. In that judgment, Supreme Court of India had included more than 30 rights, 30 rights in the right to life. कितने rights include किए थे? 30, more than 30. Right to education बताया था, right to have clean drinking water, clean air, ऐसे more than 30 rights were. So it is interpreting something called as the right to life. Okay, generally वो कोट करता है और कोट की एग्जांपल हमने दिए हैं, but we have to interpret so many other things. There is no doubt about that. Now evaluate. Now what do we do in evaluating something? What do we do? Again, let us take the example, resignation of the Union Education Minister. Now the same matter can be evaluated from different perspective. तो पहला हम ये बताते हैं कि is it adequate enough to fix the responsibility या accountability of the union government? तो कोई बोलेगा कि हाँ ठीक है सर, कुछ नहीं तो ये भी सही है ना, ऐसा भी आंसर हो सकता है उसका, नंबर 1. नंबर 2, but somebody would argue that the problem is so deeper and the problem is so complex and बड़ा है, तो by making one minister resign from the ministry is not going to help us. So we have to comparatively look into all possible arguments, perspectives and evaluate them comparatively. कि कौन ये कह रहा है, कौन वो कह रहा है। आपके दिमाग में और कुछ आ सकता है कि आपने 4 लोगों के पर्सपेक्टिव्स पढ़े हैं यहाँ पे, और ये सब करके ये सब कंपैरेटिवली एसेस करना है। अब थोड़ा सा दूसरा कोई एग्जांपल हम लेते हैं, चलो। ओके, एग्रीकल्चर, एंड almost half of the Indian population still depends upon agriculture for livelihood, we know for sure. But the sector agriculture, so important in that sense of the term because it feeds half of the population in one sense of the term, because they are dependent on agriculture. वो feed तो सबको करता है, लेकिन literally speaking almost half of the population still depends upon agriculture. Number 2, but has the agriculture as a sector the ability to sustain that portion of population, that percentage of population? The answer is no. Simple सी भाषा में, the existing Indian agriculture, okay, in economics की भाषा में, can sustain only 17% या 18% people, क्योंकि एग्रीकल्चर का जीडीपी को कंट्रीब्यूशन है अराउंड 15 to 17%। जो 100 रुपीज आता है ऐसा अगर माना है, तो उसमें से एग्रीकल्चर से कितना आता है? तो मैक्स 17% है, 17, और लोग कितने डिपेंड है? 50%, और गैप कितना है बीच में? 50 - 17 कीजिए, इतना सरप्लस पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्राइसिस आएगा या क्या होगा, मुझे बताइए? इट इज इन डीप क्राइसिस। नाउ वी हैव टू इवेल्युएट द क्राइसिस इन एग्रीकल्चर। तो वो इवेल्युएट करते वक्त हम क्या करेंगे? फिर पीछे जाएंगे, व्हाई डू वी हैव द क्राइसिस, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट है उसका इफेक्ट क्या हुआ है, देन उसका सही तरीके से मतलब निकालना पड़ेगा। अगर हमने कहा कि, अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समथिंग कॉल्ड एज क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, आपके हिसाब से क्या है वो? आपको क्या लगता है? यू कैन आंसर दैट। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर बीइंग इन डीप क्राइसिस? उसका क्या अर्थ लगाते हो आप? हाँ, सॉरी, स्कार्सिटी ऑफ फूड। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, लो यील्डिंग प्रोपोर्शन ऑफ क्रॉप। ओके, यानी कि प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं आप। ओके, ठीक है, वो बहुत ही लो है। और क्या है? हाँ, यस, एग्रीकल्चर से आउटकम पैसा
नहीं सॉरी, फिर से कहिए. एग्रीकल्चर का जो आउटकम है हाँ, वो कम है और उसमें जो इन्वॉल्व पर्संस की वो मिसमैच है. इनपुट आउटपुट का अगर रेशियो देखते हैं तो मिसमैच है. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. ओके फाइन, यस राइट, एब्सोल्युटली राइट. और क्या है? समटाइम्स क्लाइमेटिक चेंजेस हो. क्लाइमेट चेंज, यस. व्हाट एल्स? एमएसपी यानी कि दाम नहीं मिलता है ना, दाम नहीं मिलता है कि जो प्राइसेस मिलने चाहिए है ना, वो प्राइसेस नहीं मिलती है. और क्या है? सो हाँ, यस, डेप्ट है. ओके फाइन, दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेस टू सपोर्ट देम एंड दे हैव टू रिलाई ऑन द प्राइवेट फाइनेंस, साहूकार्स एंड द अदर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, एंड डेप्ट में बूढ़े जाते हैं. यस एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट दैट. नाउ each and every answer was right in okay, जिसको हम बोलते हैं कि सही था वो. लेकिन उसमें आपने क्या किया है? you focused on या you identify one aspect of the crisis in agriculture या agricultural crisis. किसी ने कहा प्रोडक्टिविटी लो है, किसी ने कहा प्राइसेस नहीं मिलती है, किसी ने कहा कि दोनों में बहुत बड़ा मिसमैच है कि जितना इनपुट डालते हैं और आउटपुट और प्राइसेस वो मिला के कोई हिसाब नहीं बनता है वो, यानी कि इनपुट को ही ज्यादा जाता है हमारा. लेकिन आपने एग्रीकल्चर क्राइसिस के कुछ ऐसे पहलू नहीं बताए हैं जो बहुत ही डीपर एंड स्ट्रक्चरली उसका पार्ट है. वो क्या है? हाँ, क्लाइमेट चेंज, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन. वो भी पहलू आपने बताया. और क्या है कि जो मिस आउट हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, वो प्रोडक्टिविटी का ही हुआ है. यस, हाँ हाँ, वो तो बड़ा है, सही है, सस्टेनेबिलिटी है. लेकिन मतलब क्या है? तो मैंने जैसे बताया कि स्टिल 50% पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, बट इट हैज द कैपेसिटी ओनली टू सस्टेन 17 पीपल, यानी कि 17%, यानी कि वो ओवरलोडेड है. द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, वो कितना सरप्लस है? 5-10% समझ सकते हैं हम. क्या परसेंटेज है उसका? 20 कितना हुआ? 23. 50 माइनस 17, 33, सॉरी. आप देखिए कितना है वो. तो फिर वो इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं एग्रीकल्चर हैज नॉट रिमेन सस्टेनेबल एट ऑल. क्यों सस्टेनेबल नहीं है? सबसे बड़ा कारण है ये इतना पॉपुलेशन का डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. वो सबसे बड़ा कारण है. बाकी है डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. दूसरा बड़ा कारण आपको बताना है, एटलीस्ट दोज हु कम फ्रॉम द रूरल एरिया, दे मस्ट बी फुल्ली अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि एज ए लिव्ड एक्सपीरियंस, लुक एट द लैंड होल्डिंग. कितना लैंड होल्डिंग है? किसी के पास आधा एकड़ है, नॉट हेक्टर, आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़. अब कैसे सस्टेनेबल होगा वो बिल्कुल नहीं होगा. बिकॉज from independence till date, agriculture has witnessed fragmentation, है ना. यानी कि पहला जनरेशन, उसके बाद वाला दूसरा जनरेशन, उसके 3, 4, 5 बच्चे जितने भी हुए हैं, लैंड गॉट फ्रैगमेंटेड. तो वो सस्टेनेबल नहीं है. सो लैंड होल्डिंग हैज बीन रेडिकली डिमिनिश्ड. कम होता जा रहा है. जितना लैंड का पीस आपका छोटा हो जाएगा, तो देन इंक्रीजिंगली एग्रीकल्चर बिकम्स अनसस्टेनेबल. क्योंकि आप इन्वेस्ट कहां से करोगे? और अगर इन्वेस्ट भी किया, 1 मानसून अगर गया ऐसा वैसा, तो निकलेगा क्या उससे? एंड देन वी हैव द इश्यू ऑफ रेम्यूनरेटरी प्राइसेस. एमएसपी सबको नहीं है वो. देयर आर दीज इश्यूज. फिर क्लाइमेट चेंज का है, कभी ज्यादा रेन होता है, कभी रेन ही नहीं होता है. सो इफ वी टेक ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर, तो फिर समझेगा नाउ वी गॉट टू नो अबाउट द क्राइसिस. सो देयर आर सो मेनी what aspects of. so इसलिए हमें सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. कोई कहेगा कि फार्मर्स आर मेकिंग सुसाइड्स, बट दैट इज अ सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम. कॉजेस कुछ अलग है तो वो हमें देखने पड़ेंगे. देन इवेल्युएट. तो इवेल्युएशन में क्या करेंगे हम? जैसे आपने कहा, अगर मैंने आपको पूछा व्हाट नीड्स टू बी डन, पहला आपका सजेशन क्या होगा टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर? पहला क्या सुझाव आप देंगे? Government should make some policies so the farmers can फायदा उठा सके. म्हणजे शेतकऱ्यांना फायदा होईल असं काय करायचं, त्याच्याकडे नंतर येऊयात. आय वॉन्ट समथिंग एल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हॉट एव्हर वी जस्ट डिस्कस. येस, सरप्लस पॉप्युलेशन
पहला आंसर वो होना चाहिए आपका। वो हटाइए पॉपुलेशन, कितना लॉजिकल है ना, और वो खाली लॉजिकल नहीं है, वो रियल भी है ना। क्योंकि अगर इतना पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करता है तो कैसे वो काम करेगा एग्रीकल्चर। इट विल ऑलवेज रिमेन ओवर क्राउडेड एंड ओवर बर्डन। तो आपको पहले से हटाना पड़ेगा। एंड द न्यू गवर्नमेंट व्हेन कम टू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014, इन द वेरी नेक्स्ट ईयर दे हैड लॉन्च समथिंग कॉल्ड एज मेक इन इंडिया। उसका क्या हुआ है पता नहीं है, लेकिन मेक इन इंडिया का नारा था उसमें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसको लिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना पॉपुलेशन है उसको हटाना पड़ेगा वहां से। वो जबरदस्ती से तो नहीं कर सकते हम। वी हैव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब ये क्रिटिकल माइंड ही हो रहा है हमारा। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड a very well known problem around us. We are part of that, but we have to apply our mind, ask questions, look into the matter, various aspects of the given matter या given subject. उस तरीके से हमें उसको करना है। दूसरा क्या सुझाव है बताइए। पहला तो सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, अच्छा, रिसोर्सेस होनी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हुआ तो करेंगे क्या वो। एनीथिंग एल्स? यस, टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। यस, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। और क्या है आपको लगता है? और क्या? इरिगेशन का किसने नहीं बताया? यस यस, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सब कुछ करेंगे, प्रोड्यूस निकलेगा और प्राइसेस ही नहीं है तो क्या करेंगे हम? सगळं मराठीमध्ये म्हण आहे, सगळं मुसळ केरात गेलं असं म्हणायला लागेल आपल्याला, म्हणजे दॅट वुड बी अ डीप प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। सब कुछ किया है हमने। वी गॉट इरिगेशन फैसिलिटी इन प्लेस, इनपुट, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल सपोर्ट, एवरीथिंग, गुड प्रोड्यूस, प्राइसेस ही नहीं है, फटाक से प्राइसेस नीचे आती है तो क्या करेंगे हम? सो वी हैव टू इंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर दीज प्रोड्यूस। एब्सोल्युटली राइट। आपको पता चला कि इवैल्यूएशन ये चौथा लेवल क्यों रखा है हमने। तो पहला तो क्वेश्चन हमें पूछना पड़ेगा। We will get lot of tons of information at our disposal. We will have to analyze it, dissect it into causes and effects. कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। शब्द थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगेंगे आपको, बट डरिए मत, नो इश्यू विद इंटरप्रिटेशन। सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यानी कि उसका मीनिंग सही लगाना पड़ेगा। अगर उसमें हमने गलती कर दी तो बात खत्म, यानी कि हमारा क्रिटिकल माइंड किसी और दिशा में ही जाएगा वो। वी शुड नॉट लेट दैट हैपन। मीनिंग इवैल्यूएशन, जो कुछ भी आज तक किया है उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे, एंड देन वी विल रीच समथिंग कॉल्ड एज, क्या टाइप का जजमेंट होगा मुझे बताइए आप। हम कह सकते हैं वेल इन्फॉर्म्ड जजमेंट या डिसीजन। नंबर 2, बेस्ड ऑन राइट लॉजिक, क्योंकि हमने एनालिसिस अच्छा किया था। जैसे मैंने कहा, रिफ्रेम किया, आपने सही जवाब दिया उसका कि व्हाट शुड वी डू टू डील विद द क्राइसिस इन एग्रीकल्चर। तो पहला आंसर आपका होना चाहिए वो सरप्लस पॉपुलेशन है, वहां से हटाइए। ओके, तो फिर वैसे वाले हम पॉलिसी, वैसे वाले लॉ, वैसे वाले प्रोग्राम हम डेफिनेटली कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। अब लेट अस कंक्लूड, जस्ट आई नीड अ कपल ऑफ मोर मिनट्स एंड देन विल कंक्लूड द सेशन। You are going to be a civil servant, a government servant, and you are going to need this critical thinking ability, okay, a lot at 2 levels. पहला तो which is a requirement of your examination, because mains questions of GS, of optional, of essay happens to be quite dynamic, which demands from you a critical thinking ability. ऐसा सरफेस लेवल पे आपने पढ़ा है, उसको मगअप किया है और आपने लिख के आए हो आप, ऐसा नहीं होने वाला है। यू हैव टू थिंक अ लॉट, वी हैव टू अप्लाई अवर माइंड एवरी नाउ एंड देन। सो इन योर, यानी कि थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला। और दूसरा मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वंस यू ज्वाइन एज ए सिविल सर्वेंट, यानी कि गवर्नमेंटल मशीनरी, वहां आपको क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बहुत काम आने वाली है, बहुत यानी कि बहुत। ओके, तो उसमें आपको जजमेंट्स लेने हैं, आपको डिसीजंस लेने हैं। इफ वी हैव ऑल दीज अर्लियर स्टेप्स इन प्लेस, देन योर जजमेंट, योर डिसीजन विल बी अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन।